Hello everyone, good morning. In this video, we are going to learn a new grammar topic, direct and indirect speech. Before that, let's revise whatever we have completed till now. We have completed the topics which are, first is tenses we have completed, then we have completed one more topic, that is models. The third topic which we have completed, that is subject verb agreement. Now we are going to learn direct and indirect speech, and then we are going to learn one more topic, that is determiners. These are the 5 topics which is there in our syllabus for the 10th board exam. Okay, so let's start direct and indirect speech. In this we are going to learn how to change direct to indirect, the statements, commands and requests and questions. These 3 we are going to learn in this topic. Okay, direct and indirect speech is very important topic for you, because from this year you can be asked this topic for 6 marks. So that's why it's very important. So please pay attention, and after that if you have any query, you can contact me on my number anytime. Okay, so let's start. Now first of all, the words spoken by a person can be reported in 2 ways. कुछ भी बोला जाए, कोई भी पर्सन बोले, उसे 2 तरीके से रिपोर्ट किया जाता है, इनडायरेक्ट और एंड इनडायरेक्ट. When we quote the exact words spoken by a person, we call it direct speech. अगर किसी ने कुछ बोला, मिस्टर एक्स ने कुछ बोला, वही चीज सेम टू सेम मिस्टर वाई अगर बोलता है तो उसे कौन सी स्पीच कहा जाता है? डायरेक्ट स्पीच, विदाउट चेंज. एग्जाम्पल, सोहन सेड टू मोहन, आई एम गोइंग टू स्कूल. तो ये सोहन सेड टू मोहन, देन कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू स्कूल. This is the direct speech. Direct speech will always in double inverted comma. Clear? Now let's see what is indirect speech. The exact words spoken by Sohan are put within inverted commas, but when we give the substance of what Sohan said, it is called the indirect speech. ठीक है, जब हम बताए कि क्या रोहन ने बोला, ठीक है, सोहन ने क्या बोला, तो उसे क्या कहा जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, सोहन टोल्ड टू मोहन दैट ही मीन्स सोहन was going to school. So with the change of here reporting verb, by adding that as a conjunction or adding these 2 sentences, then we have add or change the tense also. So this is indirect speech. Okay, so I hope you clear about what is direct speech and what is indirect speech. Now let's see what are the changes we have to do while doing direct to indirect. First of all, reporting clause and reported speech. Let's see what is reporting clause, what is reported speech. Sohan told Mohan that he was going to school. Okay, this is the sentence we have seen here. The words which generally come before the inverted commas are called the reporting clause. So these are the words in inverted commas. Before that, Sohan said to Mohan. This is called reporting clause. So remember this. ये जो sentence है, Sohan said to Mohan, जो इन्वर्टेड कॉमास से पहले या बाद में जो भी वर्ड्स आए जो इन्वर्टेड कॉमास में ना हो, उसे कहा जाता है रिपोर्टिंग क्लॉज. सोहन सेड टू मोहन, एंड द वर्ब सेड इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब, और उसमें जो वर्ब होगा उसे कहा जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब. द वर्ड स्पोकन बाय सोहन एंड पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास आर कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच, और जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास में है उसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच. आई एम गोइंग टू स्कूल. I hope you are clear about what is reporting clause, what is reporting verb, and what is reported speech. I am just revising.
Sohan said to Mohan. This sentence is reporting clause. Said is reporting verb, and I am going to school, which is in inverted comma, that is reported speech. Clear? Now let's go ahead. Rules for changing direct speech into indirect speech. First, in the indirect speech, no inverted commas are used. Indirect speech में inverted commas नहीं होंगे. Second, the conjunction that, if, whether, etc. are generally used after the reporting verb. Reporting verb के बाद ये सारे conjunctions use होंगे. The first word of the reported speech begins with the capital letter. रिपोर्टेड स्पीच का जो भी सेंटेंस होगा वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से. रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच मीन्स जो इन्वर्टेड कॉमा में होगा वो आई कैपिटल से स्टार्ट हुआ है, पर ही रिपोर्टेड, ये जो सेंटेंस हमने कनेक्ट किया वो अब रिपोर्टेड स्पीच नहीं रहा, तो यहां पर ही में एच कैपिटल नहीं होगा. सो रिमेंबर दिस थिंग. देन नेक्स्ट पॉइंट, द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज. रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड है तो सेड ही रहेगा, से है तो से ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा. इसका मतलब प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, पास्ट है तो पास्ट, फ्यूचर है तो फ्यूचर, उसमें हमें चेंज नहीं करना है. द रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू सेंस. इट मे बी टोल्ड, आस्क्ड, इंक्वायर्ड एटसेट्रा. ठीक है, सेंस के अकॉर्डिंगली, मीनिंग के अकॉर्डिंगली जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज होगा, पर उसी टेंस में, टेंस चेंज नहीं होगा. Now let's see the next point, third point. Rules for the change of pronouns. Now pronoun किसे कहते हैं? I, we, you, he, she, it, they. These are the pronouns. अब वो pronouns change कैसे करना है? जब direct से indirect में change करे तब. So this you have to remember. The first person pronouns I, me, my, we, us, are in the reported speech change according to the subject of the reporting verb. So this you have to remember. अगर फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में, जैसे कि हमने वो सेंटेंस देखा, आई एम गोइंग टू स्कूल. ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन. सो फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखो यहां पर सोहन, तो सोहन रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है. ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा. ओके, फिर सेकंड, द प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन, यू, योर, योरसेल्फ, इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. वो सेकंड पर्सन होगा अगर यू, योर, योरसेल्फ अगर होगा, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा. एंड द प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन डू नॉट चेंज. ही, शी, इट, हीज, हिम, जो भी होगा वो चेंज नहीं होगा. सो रिमेंबर दिस थिंग. फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज. You will remember subject according, first person according to the subject, second person according to the object. Clear? Okay. Now the you have to remember one thing. S, S, O, N. S for subject, N for O for object, N for no change. First person change according to subject, second person change according to object, third person no change. So you have to remember son, S-O-N. ठीक है, son आपको याद रखना है to change of pronouns. Now let's see some examples. First, he said I like the book. So here I is the first person. तो first person कैसे change होगा? According to the subject of the reporting verb, S. तो subject क्या है? he. तो I किस में convert हो जाएगा? he में. He said that he liked the book. Then he said to me, do you like the book? You, second person. Second person will change according to object. Me से change होगा. ठीक है, तो he asked me if
यू का हो गया आई लाइक्ड द बुक। फिर थर्ड, ही सेड ही लाइक्स द बुक, ही इज थर्ड पर्सन, इट मीन्स नो चेंज, ही सेड दैट ही लाइक द बुक, ही को चेंज नहीं किया। क्लियर? सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट द चेंज ऑफ प्रोनाउंस। नाउ लेट्स सी द फोर्थ पॉइंट, चेंजेस इन वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस, टाइम, ऑक्सिलरीज। तो कुछ ऑक्सिलरीज वर्ड्स है, टाइम है, नियरनेस है, वो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे चेंज होंगे? तो फर्स्ट है दिस, चेंज होगा दैट में, देर, सॉरी यहां पर दीज आएगा, THESE, दीज विल चेंज इनटू दोज, नाउ, देन, हियर, देर, टुडे, दैट डे, tomorrow, the next day, yesterday, the previous day, last night, the previous night, can, could, may, might, shall, should, will, would, ago, before, just, then, come, go, does, so. So these are the words will change in direct to indirect according to this. Clear? Now let's go ahead. Now very important point, change in tenses. Tenses कैसे? Very important point. Tenses change करने में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, तो आपको ये अच्छी तरह से समझना है, इसमें गलती नहीं करनी है। If the reporting verb is in the present or the future tense, reporting verb जो हमने देखा सोहन said to मोहन, तो said है वो क्या है? reporting verb। अगर reporting verb present या future में है, say, will say, ये है present या future। अगर present या future में है, the tense of the reported speech is not changed, तो आपको reported speech जो inverted commas में होगा वो चेंज नहीं करना है, टेंस उसका सेम रहेगा। लेट्स सी एन एग्जांपल, सतीश सेज आई एम फ्लाइंग अ काइट, आई एम फ्लाइंग अ काइट, रिपोर्टेड स्पीच क्या है जो इन्वर्टेड कॉमा में है वो आई एम फ्लाइंग अ काइट। अब लेट्स सी सतीश सेज दैट, हमें कंजक्शन तो ऐड करना है दैट, बट हमें आई एम फ्लाइंग अ काइट जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगा, आई का हो जाएगा ही इज फ्लाइंग अ काइट। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल, सतीश विल से, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड दिस इज सिंपल फ्यूचर टेंस। सतीश विल से आई वांट अ ग्लास ऑफ मिल्क, सो हियर सतीश विल से दैट ही, आई का ही हो गया, ही है इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वर्ब के पीछे एस या एस आएगा, इसलिए ही वांट्स अ ग्लास ऑफ मिल्क। क्लियर? तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हमें जो इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच, उसका टेंस हमें चेंज नहीं करना है। सो रिमेंबर दिस थिंग। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, पर अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज एज फॉलो। तो फिर चेंज कैसे होगा? ठीक है, तो आपको बहुत ही इजी टेक्निक में सिखाता हूं, आप अच्छी तरह से याद रखना। ये 8 फिंगर्स है, 8 फिंगर्स में से आप ये 4 फिंगर्स को समझ लीजिए ये प्रेजेंट टेंस है, और ये 4 फिंगर्स को समझ लीजिए कि ये पास्ट टेंस है। अब दोनों टेंस प्रेजेंट टेंस एंड दोनों 4 टेंसेस है, तो हम समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। सेकंड कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? तो चारों में से पहला है वो सिंपल टेंस के लिए, दूसरा है वो कंटिन्यूअस टेंस के लिए, थर्ड है वो परफेक्ट टेंस के लिए, फोर्थ है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, दोनों में। ठीक है, अब चेंज कैसे होगा? फर्स्ट फिंगर के साथ फर्स्ट फिंगर, सेकंड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ थर्ड,
फोर्थ के साथ फोर्थ, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज होगा सिंपल पास्ट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज होगा सिंपल पास्ट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्लियर? तो इस तरह से सारे प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गए। नाउ लेट्स सी हाउ द पास्ट टेंस विल चेंज। अगर रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा में है वो अगर पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस कैसे चेंज होगा? तो पास्ट टेंस भी पास्ट टेंस में ही चेंज होगा। क्लियर? अब हमने देखा था ये है प्रेजेंट टेंस, ये है पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस ही हमें चेंज करना है तो प्रेजेंट टेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी ये भी पास्ट टेंस है और ये भी पास्ट टेंस है, ठीक है। अब हमने वो मैथ में सीखा था, बोरो करते हैं तो क्या करते हैं, तो कुछ माइनस हो जाता है, ठीक है। हमने एक हाथ से दूसरा हाथ मांगा, ठीक है, तो कुछ माइनस होगा, इसलिए यहां से 2 फिंगर माइनस हो गए, फर्स्ट 2 फिंगर्स, ठीक है। अब फर्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां पे थर्ड फिंगर कौन सी है? पास्ट परफेक्ट, फोर्थ फिंगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सिंपल पास्ट, तो यहां पे थर्ड फिंगर कौन सी है? सिंपल पास्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। सेकंड फिंगर पास्ट कंटिन्यूअस, यहां पे फोर्थ फिंगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां पे थर्ड फिंगर पास्ट परफेक्ट, यहां पे फिंगर नहीं है इसलिए नो चेंज। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नो फिंगर, नो चेंज। क्लियर? वंस अगेन वी आर डूइंग, 2 फिंगर निकल जाएंगी। सबसे पहला सिंपल पास्ट, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। सेकेंड पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नो फिंगर, नो चेंज। क्लियर? So you have to remember this very sweet technique to remember to change of tenses. Let's see here also simple present change into simple past, right का हो जाएगा wrote, present continuous change होगा past continuous, present perfect past perfect, simple past past perfect, past continuous past perfect continuous. Remember, if the direct speech expresses a historical fact, a universal truth or a habitual fact, then the tense of the direct speech will not change. पर अगर reported speech अगर यूनिवर्सल फैक्ट दिखाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाता है, हिस्टोरिकल फैक्ट दिखाता है या हैबिचुअल फैक्ट दिखाता है, तो आपको टेंस चेंज करना नहीं है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, तो ट्रूथ हो गया, प्रोवर्ब्स है, इसलिए ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। अब एक चेंज आपको याद रख, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कब चेंज करना है, कब नहीं, ये यहां पे मेंशन नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, अच्छी तरह से समझ लेना। अगर लेट्स गो अहेड, बाय दिस यू विल रिमेंबर वेल। इफ विद द रिपोर्टिंग verb, if object is given, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच जो है इसमें रिपोर्टिंग क्लॉज है जो उसमें अगर ऑब्जेक्ट है तो सेड टू का टोल्ड करना है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ ही सेड है, तो आपको वो चेंज करना नहीं है, सेड का सेड रहेगा। तो अगर स्टेटमेंट है तो टोल्ड होगा, क्वेश्चन है तो आस्क्ड होगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड। तो रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करना है अच्छी तरह से याद रखना। नाउ लेट्स गो अहेड। सेकंड, ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। आंसर ऑफ दिस, ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट, ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, सो नो चेंज इन द टेंस। He said that the sun rises in the east. Clear? I hope you are clear about if the reported speech is in universal truth, historical fact or habitual action. Now let's go ahead. Now our main
topic starts from here. Changing statements into indirect speech. We have to learn statements, commands and requests, and third, questions. These are the three things we are going to learn. In that, first we are starting with the statements. The reporting verb said to is changed to told, replied, remarked. ठीक है, हमें चेंज करना है told में, replied में या remarked में. The reporting verb is not followed by an object, it is not changed. That already I have explained. अगर reporting verb के पीछे object नहीं है तो आपको वो reporting verb change करना नहीं है. The inverted commas are removed. The conjunction that is used to connect the reporting clause with the reported speech. ठीक है, inverted commas निकल जाएंगे और conjunction that use करना है to connect two sentences, reporting clause and reported speech. The rules for the change of pronouns, tense, etc. are followed. जितने भी tense हमने changes देखे वो same रहेंगे. Let's see an example. Ramu said, I saw a lion in the forest. तो यहाँ पे रामू said है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होगा. तो रामू said, उसके बाद हमें कनेक्ट करने के लिए कंजक्शन यूज करना है. दैट इज द फर्स्ट पर्सन, सो फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सो द सब्जेक्ट रामू इज मेल, सो फॉर दैट we will use he. And I show means simple past tense. Simple past tense will change into past perfect tense. So Ramu said that he had seen a lion in the forest. Clear? So what changes we have done? First of all, we have add conjunction, then we have changed pronoun, then we have changed the tense. So remember the changes which I have made. Then second sentence, Satish said to me, I am very happy here. Satish said to me, I am very happy here. Now here said to is there and object is there. So we have to change the reporting verb. Reporting verb change into told. Said to will change into told. Satish told me, then conjunction that I will change according to subject. I तो सतीश मेल है इसलिए he. am, I am very happy here. am का हो जाएगा was. he was very happy here का हो जाएगा there. Clear? So what are the changes we have made? First of all, changes of reporting verb, then add conjunction that, then pronoun, then tense, and then nearness word. here का हो गया there. So these are the changes we have made. Clear? Now let's go ahead. The first, changing statements into indirect speech. I hope you understood well. Now let's see rules for change of interrogative question sentences. अब interrogative questions को कैसे change करना है, ठीक है? Let's see that. The reporting verb say is changed into ask, inquire. अगर say है तो ask, inquire. said है तो asked, ed, inquired, ed. ठीक है? The interrogative sentence is changed into a statement by placing the subject before the verb and the full stop is put at the end of the sentence. ठीक है, अब क्वेश्चन फॉर्म होगा रिपोर्टेड स्पीच, उसको हमें कन्वर्ट करना है स्टेटमेंट फॉर्मेट में. स्टेटमेंट फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे हम? बाय प्लेसिंग द सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब. वर्ब के पहले हमें सब्जेक्ट को रखना है. ये इस तरह से हमें सेंटेंस बनाना है. He was very happy there. Was he happy there? ऐसे नहीं. ठीक है? So let's go ahead. Third point. If the interrogative sentence has a WH word, अगर interrogative sentence start होता है WH word से, जैसे कि who है, when, where, how, why, etc. There WH word is repeated in the sentence. It serves as a conjunction. तब हमें कंजक्शन की तरह वही सेम WH वर्ड को लेना है. बट इफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, अगर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन यस नो टाइप के आंसर वाले हो, जैसे कि डू यू प्ले क्रिकेट, तो उसका आंसर क्या आएगा? यस या नो. तब क्या करना है?
with auxiliary verbs am, are, was, were, do, did, have, shall, etc. अगर इन सारे वर्ड से अगर क्वेश्चन स्टार्ट होता है then if और whether is used as a conjunction, तब आपको if या whether यूज करना है कंजक्शन के लिए। क्लियर? अगर WH से स्टार्ट हो रहा है तो सेम WH वर्ड आपको कंजक्शन की तरह यूज करना है, और अगर ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो आपको if या whether यूज करना है एज अ कंजक्शन। The auxiliaries do, does, did in a positive question in the reported speech are dropped. और अगर do, does, did से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, अगर वो क्वेश्चन पॉजिटिव क्वेश्चन है, अफर्मेटिव क्वेश्चन है, तो आपको do, does, did जैसे जो वर्ड्स है उसको ड्रॉप करना है, उसको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय लेना नहीं है। द कंजक्शन दैट इज नॉट यूज आफ्टर द रिपोर्टिंग क्लॉज, अब हम दैट कंजक्शन यूज नहीं करेंगे, दैट की जगह पे इफ, वेदर या फिर वो WH वर्ड हम कंजक्शन की तरह यूज करेंगे। लेट्स हैव एन एग्जांपल, डायरेक्ट स्पीच, आई सेड टू हिम वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क। सो हियर वेयर इज WH वर्ड, तो हमें कंजक्शन में यही वर्ड यूज करना है। लेट्स सी द आंसर। सेड टू का हो गया आस्ट, आस्ट हिम वेयर आर यू का हो, यू आर गोइंग, विच टेंस इट इज? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वेयर ही वाज गोइंग, देन फुल स्टॉप। तो हमें स्टेटमेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। क्लियर? व्हाट चेंजेस वी हैव मेड? फर्स्ट ऑफ ऑल we have reporting verb, then add conjunction, then the format we have change into statement format, and then tense. Okay, so these are the changes I have made. Second sentence, he said to me will you go there, here will is used, model auxiliaries। ठीक है, तो auxiliaries verb से start हो रहा है, तो हमें क्या करना है? if या whether यूज करना है as a conjunction। Let's see, he asked me if I would go there, will का हो जाएगा would, shall हो तो should, can हो तो could। तो he asked me if I would go there। Clear? अब चेंज क्या किया हमने? said to का asked किया, यहां पे कंजक्शन ऐड किया, if, you का हमने चेंज किया, प्रोनाउन चेंज किया हमने, प्रोनाउन you है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इट विल चेंज, मी है इसलिए I हो गया, will का हमने would किया। ठीक है, these are the changes we have made and the question format change into statement format। Clear? So these are the rules and the two examples for changing interrogative sentences into indirect speech। Now let's see the third types of sentences and the last one, the changing commands and requests into indirect speech। ठीक है, अगर कमांड्स या रिक्वेस्ट है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे? These are the sentences called imperative sentences। In imperative sentences having commands, the reporting verb is changed into commanded, ordered, tell, allow, request, etc। ठीक है, तो imperative sentence इस तरह से चेंज होंगे। The imperative mood is changed into the infinitive mood by putting to। ऑर्डर हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, जो भी हो, हमें उसे, उस स्टेटमेंट को, उस सेंटेंस को हमें किस में कन्वर्ट कर देना है? इन्फिनेटिव में, बाय एडिंग टू बिफोर द वर्ब। इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस द ऑक्सिलरी डू इज ड्रॉप्ड एंड टू इज प्लेस आफ्टर नॉट। ठीक है, तो डू नॉट, डिड नॉट, ऐसा कुछ भी है तो हमें डू, डीड वो सबको ड्रॉप करना है, और एज अ कंजक्शन हमें क्या यूज करना है? नॉट टू। Clear? Let's see an example. She said to me open the window। She said to me open the window। तो अब ये क्या हो गया? ऑर्डर्ड हो गया, तो she ordered me open the window के आगे सिर्फ to लगा देना है, to open the window। अब अगर ऐसा है she said to me don't open the window, तो क्या हो? she ordered me not to open the window। Clear? Another example, the captain said to the soldiers attack the enemy। कैप्टन सोल्जर्स को क्या देगा? कमांड देगा,
The captain commanded the soldiers to attack the enemy. Clear? So these are the changes which we have to remember while changing commands and requests into indirect speech. I hope you all are understood the direct and indirect speech topic well, and if you have any difficulty you can contact me, that already I have told you. Now in next video we are going to learn another grammar topic, that is determiners. Thank you. Have a nice day.